آج اس پروردگار کے نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں میرپور سے 4 کلومیٹر دور ڈھوک جرال کے مقام پر۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ قبل روز نیوز نے ایک خبر نشر کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اس گاؤں میں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ ڈسپنسری ہے اور نہ ہی سکول ہے، جس کے بعد کچھ مخیر حضرات نے اور وزیر حکومت چودھری رخسار نے اس گاؤں میں جو بنیادی سہولیات کو پہنچانے کا آغاز کیا، اور اس میں کچھ مخیر حضرات ہیں، انہوں نے اس گاؤں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگایا۔ آج میں اس گاؤں کی مکمل ہسٹری آپ کو بتاؤں گا، اور یہاں پر جو بسنے والے لوگ ہیں آج ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان کی زبانی ان کی کہانی آپ کو سنائیں گے۔ آپ کے پاس جو بنیادی سہولیات ان 12-13 سالوں میں اب تک نہیں پہنچی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے نصیب میں تڑپنا ہے، ہم تڑپ تڑپ کے مریں گے جس طرح مرتے ہیں ہم۔ آگے ہماری والدہ صاحب اسی طرح فوت ہوئی ہیں، ہمیں کوئی لے جانے والا نہیں ہے، ہماری فریاد سننے والا نہیں ہے۔ اگر میری زبان پہ آپ کو یقین نہیں ہے نا تو میرے ساتھ چلیں، یہ ہمارے سین میں قبریں بنی ہوئی ہیں، ہمارے پاس جینا تو مشکل ہے نا، ہمیں دفنانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، ہمارے پہ وقت آتا ہے نا کہ ہمارے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے آگے فریاد لے کے جاتے ہیں، ہماری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ یہاں کس کو بتائیں، کس کے پاس جائیں؟ خدا کے لیے ہماری فریاد سن لیں، کل آپ کو اللہ کے حضور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جی بالکل، ان غریبوں کے آنسو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را، سیاست کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، ہم بھی غریب ہیں، ہم مزدور ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی انسان سمجھا جائے۔ صرف روڈیں نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو والدہ ہے وہ راستے میں ہی دم توڑ گئیں، اور قبرستان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے سین میں ہی انہیں دفن کرنا پڑا۔ قبرستان کے والے سے کیا بتا رہے تھے آپ؟ قبرستان ہی تھا، صحیح کوئی نہیں ہے جی۔ قبرستان جس نے بھی ہے وہ اپنا نوکلا کرنا چاہنے، ایسا کی تھا قبرستان نہیں، کوئی سہولیت نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ جو فوتگی ہوئی تھی وہ کس طرح سے آپ اس کو اسپتال پہنچا سکے؟ نہیں، کوئی نہیں پہنچا سکے۔ یہ سارے دل آخر دم تک یہ افسوس ہے کہ والدہ کی اس پہنچا نہ سکے، اسی طرح ہوں سا نہیں بھی پوری ہو سی، تو لہٰذا یہ صدمہ سا کہ مرن دم تک جائی نہیں سکنا، جی سارے کو روڈ ہونی، گڈی ہونی، اصا اپنی والدہ اسپتال پہنچا مطلب بچ جانا۔ جی بالکل، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان خاتون کا یہی کہنا ہے کہ نہ سڑک، نہ بجلی، نہ پانی۔ سڑک نہ ہونے کے باعث ہماری جو والدہ تھی ان کو فالج کا اٹیک ہوا، جو بر وقت ہاسپٹل نہ پہنچنے پر یہیں راستے میں دم توڑ گئی ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ جرال کوٹ جو گاؤں ہے، میرپور سے ملحقہ گاؤں ہے، اس کی کچھ خواتین، گھریلو خواتین موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان سے کہ ان کی کیا کیا مشکلات ہیں اور اس بارے میں یہ کیا کہتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ سڑک دی گئی، نہ ہمیں بجلی ملی ہے، نہ ہی ہمیں پانی ملا، یعنی کہ ہمیں انسانوں کی قطار میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس مشکل سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں ڈسپنسری، ہمیں مطلب کہ اگر کوئی مریض ہے تو ہم اس کو جس وقت ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ ووٹ دیتے ہیں؟ جی، ہم 14 سال سے ووٹ دے رہے ہیں، کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ووٹ دیتے ہیں نا۔ یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی سیاسی نمائندہ کوئی آج تک 12 سالوں میں آپ کے پاس آیا ہو؟ میرے خیال میں ہمیں تکلیف کے بارے میں پوچھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، لیکن جس وقت ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو السلام علیکم بڑی عزت دیتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے مطالبات ان کے سامنے نہیں رکھے کہ ووٹ دیتے وقت ہمارے یہ مطالبات ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، ڈسپنسری ہے، سکول ہے؟ کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں، لیکن غریبوں کی بلا کون سنتا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ ہمیں انسانوں کی قطار میں نہیں سمجھا گیا۔ قبرستان تک میرے والدین کی، میرے ماں باپ کی قبریں یہاں موجود ہیں، دیکھ لیں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی زلزلہ آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو قبریں نیچے نالے میں بھی جا سکتی ہیں، کسی بھی قطار میں ہمیں نہیں سمجھا گیا۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں، میرے سارے بچے اسکول پڑھتے ہیں۔ کہاں پہ اسکول ہے؟ یہ بچے میرپور شہر میں پڑھ رہے تھے، اس کے بعد ہم نے یہ جو کرونا کا پرابلم ہوا ہے یا یہ جو زلزلہ ہوا ہے، اس کے بعد اب بچے ادھر پڑھ رہے ہیں یہ نیو سٹی میں۔
यानी कि यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जाके स्कूल पढ़ रहे हैं, जबकि आपके गांव में कोई स्कूल नहीं है। गाँव में कोई स्कूल नहीं है, पैदल बच्चे चल के जाते हैं। और बारिश होती है, बारिश जिस वक्त होती है तो बच्चे लेट हो जाते हैं। यहाँ पे एक खातून ने हाथ में ये लालटेन पकड़ी हुई है, तो ये क्यों पकड़ी हुई आपने? ये बिजली और जड़ा था लाइट नहीं वजह तू बिजली कोई नहीं है आपके ना, यहाँ? कोई बिजली नहीं है, कोई कख नहीं। अंधेरे विच अगर बंदा मर जाए तो असा की अंधेरे विच उठी था चाह और कावा बनाने ना आसरा नहीं होना कि लोथ बगैर किस तरह बना। अच्छा। नाज़रीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 सालों में इस गांव में ना बिजली आई है, ना पानी आई है, और ना ही डिस्पेंसरी बीमार का इलाज करने के लिए, और ना ही इन छोटे छोटे बच्चों की तालीम के लिए कोई स्कूल कायम किया गया है। जबकि इन लोगों का कहना है कि हम हर साल जो है वो सियासी नुमाइंदों के पास जाते हैं, जब उन्हें वोट लेने होते हैं तो तब वो बड़ा जी जान करते हैं, लेकिन जब हमारे ज़रूरियात को पूरा करने की बारी आती है तो तब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। पर हमारे साथ इस गाँव के छोटे छोटे जो मासूम बच्चे मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे ये तालीम का क्या निज़ाम है। बच्चे आप बताएं, स्कूल जाते हैं आप? जी जाता हूँ। इस गांव में स्कूल है? इस गांव में कोई स्कूल नहीं है, ना कोई डिस्पेंसरी, ना कोई स्कूल, ना कोई इधर कोई इलाज का कोई आप चीज़ स्कूल भी किधर नहीं। पढ़ते हैं? इधर न्यू सिटी। कैसे स्कूल जाते हैं? पैदल चल के कम से दूर है कम यहाँ से? 1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटा आते जाते लग जाता है, जाते भी और आते भी 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लग जाता है। आपकी सड़कों का कोई गाड़ियाँ वगैरह आती जाती हैं या कैसे जाते हैं? गाड़ियाँ वगैरह इधर आती हैं लेकिन बहुत मुश्किल से आती हैं। ना इधर सड़क, ना इधर बिजली। इन बैटरियों पर निज़ाम चलता है, वो भी चार्ज कर रहे हैं, वो कभी होती हैं तो कभी नहीं। मैं आज़ाद हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ के बाशिंदे, हम भी यहाँ के रिहायशी हैं। खुदा के लिए हमारी तरफ देखे 11 के भी हमारे पास से गुजरी है, उसके बावजूद भी हमारे लिए कोई इसमें से हमारा कोई हक नहीं है। इस पर हमें भी इसमें से दिया जाए हक। ये हक हमारा भी है और हम पे ध्यान दे ताकि हमें भी इस ज़रूरियात ज़िंदगी हमारी पूरी हो सके। हम 14 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमें ना बिजली मिली है, ना पानी, ना ही सड़क, ना ही डिस्पेंसरी, और ना ही बच्चों का स्कूल दिया गया। हमें कोई भी सहूलियात यहाँ मैसर नहीं हुई। जबकि हमारे घरों वाले जो हैं वो मर्द हमारे यहाँ से पैदल चल के जाते हैं काम करने, शाम को वापस आते हैं। हमें घरों में इतनी परेशानियाँ, इतनी मुसीबतें हैं कि हमारा पानी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम पैदल जाते हैं वहाँ से पानी भरने, और वहाँ से वापस पानी भर कर तकरीबन आने जाने में आधा पौना घंटा जाते वक्त लग जाता है, आधा पौना घंटा वापस आते वक्त लग जाता है। और इस तरह से हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। लिहाजा यहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, राय खुदा हम गरीब लोगों की मदद करो, और ये जो 7 बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके हाल पे रहम किया जाए। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं और हम बहुत मजबूर हैं कि रात की तारीकी में हम दिनों को अपना काम करें, रात को बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बिजली ना होने की वजह से हमारे लिए बहुत परेशानी और बहुत इस गांव में अदम सहूलियात तो हैं ही हैं, बिजली पानी वगैरह के तो मसाइल हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर 13 साल से इस गांव में एक ऐसे मरीज़ भी हैं जो चारपाई पे हैं। सड़कें ना होने की वजह से, एम्बुलेंस ना होने की वजह से, डिस्पेंसरी ना होने की वजह से जो हस्पताल तक नहीं जा सकते, जो अपना इलाज नहीं करवा सकते। आज हम इनसे जानेंगे कि इनके बुनियादी क्या क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, 13 साल से चारपाई पर हूँ। अभी तक कोई सहूलत नहीं है, ना कुछ है, ना इधर जाने की कोई मतलब जाने की कोई ना गाड़ी मिलती है ना कुछ है। फिर इधर से भी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या हुआ था? ये छत से गिरे थे। जी छत से गिरे थे, वो 2 मंजिल से नीचे गिरे थे। वो नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल ख़त्म है, ज़ख्म वगैरह हुए हैं, काफ़ी हालात ख़राब हैं, बस गरीबी हालात है। तो इधर रोड भी नहीं है, कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं है, ना कोई एम्बुलेंस है, ना कोई अस्पताल है, ना कुछ है। जाने के लिए भी किसी को कहना पड़ता है। फिर इधर कोई जो भाई बेचारा मजबूर है, फिर उसको काम पे छुट्टी करनी पड़ती है, फिर साथ जाते हैं। एमरजेंसी में अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो अस्पताल तक कैसे पहुँचते हैं आप? बस फिर इसी तरह किसी को फ़ोन करते हैं, फिर या कोई इधर रिश्का वगैरह किसी का मतलब मंगवा लेते हैं। फिर उसके किराया शराया देना पड़ता है, रुपया 1500 2000 रुपया किराया भरना पड़ता है उसको, वो दे के जाना पड़ता है इधर से फिर उधर। तुसा के मैं अर्ज करनी है जे 13 साल हो गए ने बच्चे मेरे की चारपाई पर है, कोई रैश वगैरह इधर कोई नहीं, तो ना बिजली है ना कुछ है। बीमार हो जाना है, जख्मां की वजह दी नहीं अस्पताल खड़ी सकने, एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। जो गड्डी वाले की मिन्नत शिन्नत करा वो 10,000 मंगना है, 5,000 मंगना है।
तो इस वजह से बहुत मजबूर हाँ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जराल कोट में। यहाँ पर कुछ मुखैर हजरात और तौर पर इन लोगों की मदद की है। इन लोगों की ये कमी को, पानी और बिजली की कमी को देखते हुए यहाँ पर मुझे एक वाटर प्लांट नज़र आ रहा है जो कि तावन से लगा है। हमारे साथ फराज यूनुस साहब मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। चूँकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये रोज़ न्यूज़ की ख़बर के नशर होने के बाद इन्होंने ये यहाँ पर सदका और खैरात का ये जो सिलसिला शुरू किया है, ये इनसे मज़ीद जानते हैं, ये क्या कहते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये न्यूज़ चैनल, हमने ये न्यूज़ पिक किया, तो उस न्यूज़ पिक करने के बाद हम इस इलाके को हमने विज़िट किया। यहाँ के लोगों को बिठा कर इनकी ज़रूरत पूछी कि आपकी ज़रूरत क्या है। तो यहाँ के लोगों ने डिमांड ये की है कि हमें पानी, बिजली, खाने का नहीं, का खाना तो हमने अपनी तरफ से सजेशन की है, लेकिन पानी और बिजली का इन्होंने कहा है। और ये कि यहाँ लोग काफ़ी मजबूर थे, पानी के हवाले से तो बहुत ज़्यादा मजबूर थे। बड़े दूर तक लोग जाके पानी भर के लेके आते थे। हमारी औरतें, माई बहनें ये काम किया करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये दावा किया था, उस वक्त हमने ये कहा था कि लेकिन हम जाएंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे आप लोगों के लिए। वादा कुछ नहीं करके गए थे, अल्लाह ने करवाया हमसे। इंसान तो कोई काबिल नहीं है काम करने के, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें डोनर मिल गए। तो हमने पहला प्लांट कर दिया माशाल्लाह। हमारे साले सवाब, ये नज़ाकत अली साहब मरहूम, इनके साले सवाब के लिए ये प्लांट लगा है। और दूसरा वाला प्लांट भी तैयार होने वाला है इंशाल्लाह। वो मियां ज़ुल्फ़िकार साहब ने अपनी तरफ से किया है और वो भी प्लांट तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। अगले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। और बिजली के हवाले से जो ये सब आए हैं आज, रुखसार साहब, उन्होंने अपनी तरफ से इंशाल्लाह उनका भी शुक्रिया है जो आए हैं यहाँ पे। इन लोगों को देखकर इन लोगों की ज़रूरत समझी है और इंशाल्लाह वो वादा अपनी तरफ से करके गए हैं कि यहाँ पे बिजली का जो मसला है वो भी बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। तकरीबन महीने का टाइम था, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह इसके दरमियान में कर देंगे। फराज भाई, क्या समझते हैं आप, इतने जदीद दौर में इनको ये बुनियादी सहूलियात से ये लोग महरूम हैं, क्या समझते हैं? इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हजरात को आप क्या मैसेज? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ये देखें ना, इंसान ये जो बेसिक राइट्स हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी हर इंसान की बेसिक राइट है। हर इंसान को ये मेयार होना चाहिए, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हर इंसान को तक पहुंचना चाहिए। और ये जहां तक नहीं है वहां हर गवर्नमेंट के साथ तावन करके ये काम करवाने चाहिए कि हर इंसान को कम से कम पानी और बिजली मिलनी चाहिए। ये तो इंसानी हक है, हकूक़ है, इंसानी हकूक़ है ये। जी बिल्कुल, पानी और बिजली हर इंसान का बुनियादी हक है। तो पानी और बिजली कम अज़ कम हर इंसान को मैसर होना चाहिए। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे साहिबान जो हैं, जो इन लोगों के वोटों से इलेक्ट होकर असम्बलियों में पहुंचते हैं, उनसे गुजारिश है कि इन गरीबों की हालत ज़ार को देखें। मोहम्मद इरफान, रोज़ न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।